Okay, our next topic is families of flowering plants. देखिए in families of flowering plant, this is also very important portion. Why I told you very important portion? Because every year without any break, ठीक, it's not possible कि questions will not come from this portion. Means that is fixed questions. Every year they are asking some fixed questions from this portion. So that's why this is very important one. So you have to give attention here. Okay. अब एज आई टोल्ड यू फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बेटा इसको पढ़ने का कुछ डिफरेंट मोड है ना. एज इन केसेस ऑफ योर एनसीईआरटी एक्चुअली 4 families are there. In NCERT, only 4 families are there, just like Cruciferae, Leguminaceae, Liliaceae, and Solanaceae. 4 families are there. While we will study all 8 families, whatever in the module also. So 8 families we will study. Other than these 4 families, what we will study, beta? One is their Compositae, Poaceae, Cucurbitaceae, and Malvaceae. These additional 4 families we have to study. As you know, so 4 plus 4, 8 family we have to study. As all we are knowing, as I told you beta, कि this is very important portion. So, but 8 families के characters पढ़ना, habit, habitat, root, shoot, leaf, flower, seed, fruits, ठीक, ये सारे character फिर उनके floral formulas, floral diagram and their examples, economic importance. So, according to देखें तो बहुत बड़ा सा portion दिखता है ना. अगर ऐसे पढ़ोगे तो अल्टीमेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न देम. बट एज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्टडी इट सो दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. हम वैसे पढ़ेंगे, ओके, समझेंगे. व्हाट आई टोल्ड 8 फैमिलीज पढ़नी है. अब 8 फैमिली जो है हमारी, 8 फैमिली में हम पढ़ना कैसे वो समझें. देखिए इन द सेम चैप्टर इन प्रीवियस टॉपिक व्हाट वी डिस्कस, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हैबिट, हैबिटेट, root, shoot, leaf, flower, their inflorescence, their activations, is it or not? ये सारे हमने पढ़े हैं. ठीक, their placentations we already discussed. Seed, fruits पढ़े हमने, types of seed, types of fruits पढ़े हम लोगों ने. Means to say ये जो family का major portion है already we discussed in the previous topic. आप समझे मेरी बात कि ये नहीं कि हम यहाँ पर जाकर फिर से root, shoot, leaf, flower, fruits ये सब पढ़ने लगे. Ultimately you are going to waste your time and your energy also. So what the need to study here? There is a need to discuss their floral formula, floral diagram, and their economic importance. From where they will ask the questions. Getting or not? So ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ने लगे. अगर फिर से आप सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे, what natural है, here also we will discuss something. But ये सारी चीजें inflorescence है, placentations है, their specific characters, all these things we discussed before in the last topic. Okay? So here there is a need to give some attention to a particular portion. Getting on Arji? One by one we will discuss. Okay? Just समझें. As I told you, how many families we are going to discuss? 8 family. 4 from NCERT and 4 additional. 4 from NCERT कौन? आपके Cruciferae, Leguminaceae, Liliaceae and Solanaceae. These 4 families. And 4 additional family क्या पढ़ना है मैंने? Just like हमने कहा Compositae है, Poaceae है, Cucurbitaceae and Malvaceae. Additional these 4 family there is a need to discuss. Getting or not? So 8 family हम लोग discuss. Out of these 8, as we all are knowing बेटा, one family is there आपकी Compositae. Compositae family, this is the most advanced dicot family. This is the most advanced dicot family, Compositae. Like that Poaceae, this is the most advanced monocot family. दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे. Dicot family की the Compositae, this is the most advanced dicot family, and Poaceae, this is the most advanced monocot family. इसको ध्यान रखेंगे. क्लियर? दूसरा क्वेश्चन समझेंगे. जो Compositae है आपका, Compositae, this is the बिगेस्ट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली है. जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड में दिस इज द बिगेस्ट वन फैमिली कौन? Compositae, दिस इज आल्सो कॉल्ड Asteraceae. सो Compositae, दिस इज द बिगेस्ट फैमिली. जियोग्राफिकली मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली कौन है? Compositae वन क्वेश्चन. बट अगर मैं इंडिया में बात करूं तो दिस इज द बिगेस्ट फैमिली इन इंडिया, दैट इज Poaceae. इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे. That or not? जैसे मैंने एडवांस की बात की, like that most primitive family will be there. Ranunculaceae. You know Ranunculaceae. This Ranunculaceae is the most primitive. तो Ranunculaceae का हम बात करते हैं. Ranunculaceae, this is the most primitive family. तो Ranunculaceae most primitive है. Compositae dicot की most advanced. Poaceae monocot की most advanced. Done or not? इसको ध्यान रखेंगे. Geographically Compositae, इंडिया में Poaceae, these are the questions we will discuss. तो लाइक हम लोग ऐसे बात करेंगे कि क्या पढ़ना है, इसको बहुत ध्यान रखना है.
क्लियर है नॉट जी? फिर से समझे। चलिए, यानी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में उनके फ्लोरल फॉर्मूला की कुछ टर्मोलॉजी। What the important terminologies are there we are using in floral formula, one by one we will discuss here. Okay, see, हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा बेटा आपसे, सबसे पहले अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला को एक जनरल कोई फ्लोरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, और सो दैट वी कैन डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, अगर मैं एक फ्लोरल फॉर्मूला ले, सपोज दैट क्रूसीफेरी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है, मैंने कहा नेम क्रूसीफेरी। हमको 8 फैमिली, ऑल 8 फैमिलीज के अगर कोई अदर नेम है देन आल्सो यू शुड रिमेंबर देम। जैसे मैंने कहा क्रूसीफेरी, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेसिकेसी, तो क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली से हम पढ़ेंगे बेटा 3 सब फैमिलीज वी हैव टू डिस्कस इन इट, ठीक, आपके पेपिलियोनेसी, आपके सिजलपिनॉइडी एंड माइमोसॉइडी। पेपिलियोनेसी, सिजलपिनॉइडी, माइमोसॉइडी, ये 3 फैमिली हमें पढ़नी है। बात करें यानी लेग्यूमिनेसी, दिस इज आल्सो कॉल्ड फैबेसी, फैबेसी हमें ये पढ़ना है। लिलियसी फैमिली पढ़ रहेंगे हम। सोलेनेसी, दैट इज कॉल्ड वेजिटेबल फैमिली, बात करें इसे वेजिटेबल फैमिली बोलते हैं। लार्जेस्ट फैमिली है पोटैटो फैमिली बोला जाता है इसे, तो पोटैटो फैमिली हो गया है। कंपोजिटी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एस्टेरेसी, ये अदर नेम, सो दैट वही क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, तो कंपोजिटी दैट इज आल्सो कॉल्ड एस्टेरेसी फैमिली, हमें ऐसे याद रखना है। लाइक दैट पोएसी, पोएसी दैट इज अनदर नेम इज देयर ग्रामिनी, ग्रामिनी, बात क्लियर। आपका कुकुरबिटेसी, इसे बोलते हैं गार्ड फैमिली, गार्ड, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड, स्नेक गार्ड, लौकी कद्दू तुरई, ठीक, इनकी फैमिली। सो कुकुरबिटेसी गार्ड फैमिली हो गई आपकी। मालवेसी, मालवेसी कॉटन फैमिली, ठीक। शू फ्लावर फैमिली, जो शूज होते हैं आपके, उनकी जो पॉलिश होती है उसमें इसके फ्लावर यूज किए जाते हैं, दर्शा से बोलते हैं शू फ्लावर फैमिली, और कॉटन इसका एग्जाम्पल है, तो दैट इज अ कॉटन फैमिली। Clear? So others names also you have to give some attention in it so that you can remember their name also. Okay, one by one I am going to tell you what the terminology we can use, we are using in this family. एक एक करके हम लोग बात करेंगे बेटा। हमने बात की से फ्लोरल फार्मूला की बात कर रहे हैं। फ्लोरल फार्मूला में जैसे मैंने कहा इन केसेस ऑफ सपोज क्रूसीफेरी फैमिली, तो वो क्या होता है बेटा, एक टर्म ऐसे हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन फ्लावर में एक और ऐसा टर्म लिखा जाता है, सपोज ये बाइसेक्सुअल है, सारी बात करेंगे हम लोग, क्लियर नॉट। अगर मैं बात कर लूँ सपोज यहाँ कैलैक्स वो 2+2 है, या कॉर्ला वो 4 या उसका मल्टीपल है, इस तरह के नेम्स हम यूज करेंगे। बात क्लियर। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम आ गया 2+4, एक्चुअली यहाँ पर टेट्राडाइनमस कंडीशन इज देयर, ठीक। एक गाइनोसियम, बाइकार्पेलरी, सेनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। एक जनरल फॉर्मूला जस्ट आई रोट हियर सो दैट वी कैन डिस्कस कि हमें पढ़ना क्या है। ओके, अब वन बाई वन बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, टर्मिनोलॉजी की। आप यहाँ देखेंगे सारे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी अगर आप बात करें, टर्मिनोलॉजी सबसे पहले हम ये बात करते हैं फ्लावर्स में। फ्लावर बेटा यहाँ पर अगर हम ये बात करेंगे तो फ्लावर में लिखा जाता है या तो ब्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक। मतलब प्लांट्स जो है उसमें लिखते हैं ब्रैक्टिएट, BR, ब्रैक्ट आप जानते हैं एट द बेस आफ्टर कैलैक्स, कैलैक्स के बाद जो होते हैं, जो पेडिसेल है उस पर जो लगा हुआ है एट द बेस ऑफ पेडिसेल, उसे बोलते हैं ब्रैक्ट। तो अगर फ्लावर में ब्रैक्ट आर देयर तो बोलेंगे ब्रैक्टिएट, इफ ब्रैक्ट्स आर एब्सेंट इब्रैक्टिएट, तो ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट। सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से पढ़नी है हमें इसमें, ठीक। कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे हम लोग कि रियलिटी में फैमिली याद कैसे की जाती है। फैमिली याद नहीं होती नहीं तो बच्चों को, ठीक। फैमिली तुम लोगों को फैमिलीज बड़े आराम से याद होंगी क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसकी, क्लियर ना, समझे। सो व्हाट आई टोल्ड, फैमिली क्या सोचते हैं, ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट, एक टर्म होगा आपका, तो या तो ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट और नहीं है तो इब्रैक्टिएट, इट इज रिटन देयर, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बात आगे बेटा, आपके फ्लावर्स में ए साइन, दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक साइन, ए एक्टिनोमॉर्फिक साइन है। एक्टोमॉर्फिक इसी के एवज में दूसरा साइन बना होता है। अगर मैं इस तरह के साइन बना दूं एक ऑब्लिक सा और यहाँ ऐसे, तो इसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज जाइगोमॉर्फिक, समझेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या हुआ, दिस इज फॉर सिमेट्री ऑफ फ्लावर, दिस इज फॉर सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर कैसे, इफ विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन लाइन, इफ यू आर डिवाइडिंग ऑफ प्लांट, इफ फ्लावर बेटा, ठीक, इफ
with the help of segmentation line. If segmentation line, it's moving vertically, passing through the center. If it can divide flower into two equal halves, if it can divide flower into two equal halves from more than one plane, ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, इस तरह से और इस तरह से भी सपोज फ्रॉम मोर देन वन प्लेन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक सिचुएशन. इसे क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक. बट इफ सेगमेंटेशन लाइन dividing vertically passing through the center divide a flower only from one plane, सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड हो, ऐसा ना हो किसी एक से ही. ठीक, जस्ट लाइक आइसोबाइलेटरल. आइसोबाइलेटरल कंडीशन है, आप अपने आप को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे नहीं. बात क्या? ओनली फ्रॉम वन प्लेन. इफ यू कैन सेगमेंटेशन लाइन कैन डिवाइड इट फ्रॉम वन प्लेन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक. तो जाइगोमॉर्फिक. और अगर रेडियल सिमेट्री है, ऐसे भी और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके एक्टिनोमॉर्फिक. दो कंडीशन आई, जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक. इन सब के एग्जांपल सेट पढ़ाऊंगे आपको कि हाउ टू रिमेंबर देम, कह ना, हाउ इजी दे आर. डन ऑनर जी. चलिए, तो आपके एक्टिनोमॉर्फिक हो गया एंड जाइगोमॉर्फिक इज दिया. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशंस आया अब इसके साइन फॉर देयर सेक्सुअलिटी. अब वे जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं? या तो फ्लावर आपका मेल होगा, ओके जी, मेल का साइन बना देंगे हम यहाँ, या फ्लावर क्या होगा? फीमेल, या क्या होगा? बाइसेक्सुअल. देन मींस टू से नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, कि फ्लावर या तो मेल है या फीमेल है और बाइसेक्सुअल है. मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल्स वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ओके, कौन कौन सी फैमिली किस किस एग्जांपल्स में आ रहे हैं, ऐसे याद करना इस तरह से. ठीक है, सुनेंगे. तो मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल. नेक्स्ट कंडीशन है कैलक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम. ओके, यानी मैं बात करूं अगर, तो मैंने कहा जैसे कैलक्स की. ओके, अब कैलक्स कैसे हो सकते हैं? ये मैंने कैलक्स लिख दिया, एक कोरोला लिख दिया. ठीक है. कैलक्स बेटा व्हाट एवर द नंबर दे यार, भाई प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपके ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कुछ भी हो सकते हैं. सो व्हाट एवर द नंबर्स दे हैविंग, वो हम यहाँ लिख देंगे. ए नंबर वेरी हो सकते हैं दूसरे से, और जनरली और सिमिलर भी हो सकते हैं. तो जो भी नंबर है वो लिख दिया जाएगा. तो कैलक्स हमने लिख दिया. इफ दे आर फ्यूज, इफ दे आर फ्यूज, तो क्या लिखेंगे? कैलक्स फ्यूज है गैमोसेपलस, और ऐसे अंडर ब्रैकेट कर देंगे. we will cover them, take with a help of a bracket. So if they are written in a bracket manner, then this is called gamocephalous. Same condition here. If they are under bracket, this is gamopetalous. This is gamopetalous. Like that, if they are free, suppose they are penta, if 5 if they are बात क्लियर, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस है. if they are 5 और मैंने फ्री कर दिया, if they are free also, तो 5 है और फ्री है. ठीक है. ये 5 है तो आप क्या लिखेंगे? दे आर 5 ए नंबर एंड कैसे हैं? पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस. पॉली यानी फ्री, तो ये गैमो हो सकते हैं, और फ्यूज यानी ए मतलब ये गैमो हो सकते हैं मींस फ्यूज, और ये पॉली हो सकते हैं मतलब फ्री. जो भी कंडीशन होगी वी विल राइट दैट. As I told you, both can fuse like this, both can be free like this. Anyone can free or anyone can fuse also. Any condition can be possible. Done or not? We will discuss with the names also when we will start the family one by one. There we will discuss कि कुछ में कौन सी conditions है. Done or not जी? आगे देखो. कैलक्स कोरोला की बात क्लियर हो जाएगी हमारी. ठीक है. लाइदर बात हो गई आपके एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम की. ठीक है. अब एंड्रोसियम गाइनोसियम से बात समझेंगे. देखिए, अगर मैं बात करूं एंड्रोसियम गाइनोसियम की, तो मैंने कहा बेटा एंड्रोसियम मेरा, यानी कि आप देखिए एंड्रोसियम के बारे में एवरीथिंग, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक, वी डिस्कस एवरीथिंग. वी डिस्कस अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, अबाउट देयर कैलक्स, कोरोला. बात क्लियर? आपके नेसेसरी और एसेसरी पार्ट्स, तो हमने बात सबकी बात की थी. हमने एसेसरी पार्ट कैलक्स एंड कोरोला भी डिस्कस इन फ्लावर टॉपिक, एंड नेसेसरी पार्ट एंड्रोसियम गाइनोसियम भी डिस्कस देयर एडेशन, कोहेजन, everything we discussed there. So that's why I told there is a need to give attention there. Here we are explaining the flow formula. Okay, so what I told in cases of androsium, androsium जो रहा, अब एंड्रोसियम कंडीशन, एंड्रोसियम के नंबर्स होंगे. हमें बात करनी होगी कि एंड्रोसियम के व्हाट एवर द नंबर्स दे हैविंग. हम लोग पढ़ेंगे एज इन केसेस ऑफ सपोज लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो 9+1 कंडीशन वी आर डिस्कसिंग देयर. डाई एडाल्फस, ये हम वो पढ़ सकते हैं. इन केसेस ऑफ सपोज चाइना रोज,
तो हम वहां बात करते थे इनफाइनाइट इन नंबर, मोनो एडाल्फस, तो देखो ये ऐसे फ्यूज हो गए।